Good morning, everybody. I am Dr. Geetika Mathur, and I am a medical officer. I have worked in NIVH at NIEPVD for 22 years, and now I have taken a voluntary retirement, and I am based in Chennai. It is a great experience to meet all of you, and I have the privilege today to talk about eye diseases, uh, a, ch- uh, a topic which is very close to my heart. And I have been always teaching students and trainees regarding eye diseases. And I'm sure this will help you to deal with the children and people who are suffering from visual impairment, and these visual impairment which are all linked to eye diseases. As you all know, the structure uh, of the eye has there are different structures, and basically the eye, which looks very simple to us, it has got many different structures which play a role in a formation of the image in the eye. They so the visual impairment either could be because of the structure involved, which either the structure could be not right, or it could be malformed, meaning thereby it is not correct, like it is we have inherited something which is not right, or it could be due to the eye which does lot of functions, so the functioning is not right. So that's why different structures of the eye could be involved, and that could lead to visual impairment or difficulty in seeing. There could be different agents which can cause diseases to the eye, and we know, as it is, this is the corona time, and it is says that even this the coronavirus affects the eye. So it could be the causative agent could be a bacteria, it could be a virus, it could be a fungus. So all these causes can also cause deterioration in our vision, and it can lead to visual impairment. The third thing is that there are diseases which could be congenital, meaning thereby we are born with them. So, or there could be diseases which we acquire later. Matlab, life may we have it later in our life. Then there are diseases which are age related, meaning that as the person progresses, then these diseases come up, and these are because of the degenerative processes which happen in our system or in our body. Like simple things like our vision gets bad as we progress in life. We start graying, our hair become gray, and all of a sudden our skin also loses its luster, and we get wrinkles. So these are all degenerative processes, meaning thereby that as we age progresses, then we have these diseases, or we have difficulty in different kind of, like maybe our joints don't start working very well. So these are degenerative processes. And there could be immunological causes, meaning thereby that the eye, there are certain diseases which affect the eye, and these are related to the antibodies or our immune system. So the immune system is the fighting system which should fight for our eye. So these immunological or these antibodies, they, instead of helping us, they start fighting with our own cells or own system. So there are certain diseases which also cause our immunological problems in our eye. So as you see, these are the different structures of the eye. And basically what we see is that this, which is known as the cornea, which is the outermost part which helps in vision. Then we have the lens, which you see the crystalline bluish color structure, which also helps in vision. And then it comes, this is the part of the retina which also helps in the vision formation. So these are three important structures of the eye which we are going to talk about, which is the cornea, the lens, and the retina. Now, what structure can we see? The only thing which we can see is the cornea, which is right in front. It's a kind of a very thin layer of which is a absolutely transparent layer. Those the other things like the lens, which we cannot see, and the retina, which we cannot see, we are going to talk about it. I know it can be difficult for you to understand, but I'm going to try my best to make you all understand that how these structures affect our vision.
As far as the cornea, I have talked about, this is the outermost layer, and it is a rounded structure which is present right in front of the black portion of the eye, which you see in our eye. Our eye is almost like like an almond shape. मैम So when you, सॉरी, sorry, हाँ मैम, थोड़ी हिंदी बोलनी होगी क्योंकि असमीज जो प्योर टीचर हैं वो सिर्फ इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे, तो मिक्स करके okay. थोड़ा इंग्लिश का रखना होगा मैम। ओके। अच्छा ठीक है समझ गई, मैंने सोचा इनको सब इंग्लिश में ही करना। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, नाउ जो हमारा आई का स्ट्रक्चर है, जैसा आप देखते हैं, हमको देखने में ऐसा लगता है कि आंख गोल है, पर आंख वाकई में आंख गोल है, पर जितना पार्ट हमें दिखाई देता है वो एक जैसा बादाम होता है, आलमंड जिसको हम बोलते हैं, उसके जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, और उसके सामने एक, उसके बीचों बीच एक काला अ, धब्बा जैसे गोलाकार काला एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ये काला स्ट्रक्चर जो है इसको हम आइरिस बोलते हैं, और इसके सामने एक पतली सी झिल्ली है, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। तो ये जो कॉर्निया है, विच इज द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द आई, एंड दिस कॉर्निया इज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। और ये कॉर्निया के अंदर जो भी अगर कुछ भी दिक्कत आएगी तो उससे हमारे विजन के ऊपर अफेक्ट पड़ सकता है। Now, cornea, how it can be affected? Now, cornea, though it is transparent, we cannot see it. It is absolutely clear membrane और पतली झिल्ली है, जैसा मैंने आपको बताया। तो इसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है। अब इन्फेक्शन में हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं, जैसे हमने भी कोरोना की बात करी, तो इट कैन बी ड्यू टू डिफरेंट वायरसेस विच कैन अफेक्ट इट। एंड इट कैन बी, इसमें इंजरी हो सकती है कि कोई स्ट्रक्चर, कोई चीज हमारे आंख पे आके लग सकती है, जैसे कुड बी क्रिकेट बॉल, इट कैन बी काइंड ऑफ कोई झाड़ी का कांटा है, या कोई हे है, तो मतलब जिसे हम कहते हैं कि लकड़ी का छोटा टुकड़ा या किसी तरह का ये कोई चीज हमारे से लग सकती है, तो उससे हमारे को एब्रेशन हो सकते हैं, स्क्रैचेस हो सकते हैं। अगर आंख ठीक से बंद नहीं होती है, इनएडिक्वेट क्लोजर, तो उसकी वजह से भी आंख के अंदर इंजरी हो सकती है। एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास जो लेक्राइमल ग्लैंड्स हैं वो अच्छा वर्क नहीं करें, उसकी वजह से आंख में ड्राइनेस रह सकती है, और ड्राइनेस की वजह से आंख के अंदर कॉर्निया पे इंजरी हो सकती है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे लेक्राइमल फ्लूइड्स हैं, जो आंसू जो हमारे बनते हैं, वो हमको हेल्प करते हैं टू बैक्टीरिया और फंगस, या कोई भी एक्सटर्नल, कोई भी जो भी चीज हमारे पे अटैक करती है उसको हटाने के लिए। तो अगर हमारे आंख में कोई तिनका या कुछ गिर जाए तो आप देखिएगा कितना आंसू आंख से निकलता है, जिससे सो दैट वी कैन वॉश इट आउट। तो अगर ड्राइनेस रहेगी तो उससे भी कॉर्निया में इन्फेक्शन हो सकता है, और कोई भी एलर्जिक डिजीजेस होती हैं उनसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। आंख के कॉर्निया के इन्फेक्शन को केरेटाइटिस का नाम दिया जाता है। तो केरेटाइटिस अगर हो जाए, आंख में इन्फेक्शन हो जाए, कॉर्निया में इन्फेक्शन हो जाए, तो उसमें क्या, देखने की क्षमता कम हो जाएगी, आंख से हरदम पानी गिरता रहेगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, और उसकी वजह से आंख के अंदर एक छोटा सा, जैसे घाव बोलते हैं हमें, तो घाव हो जाएगा, जिसको हम कॉर्नियल इरोजन या अल्सर के नाम से जानते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये घाव भरेगा, तो जैसे हमारे कोई भी चोट लगती है उसके ऊपर आप देखते हैं कि एक काला सा धब्बा जैसा पड़ जाता है चोट लगने के बाद, उसी तरह कॉर्निया में भी अगर कोई घाव हो जाएगा तो उसके बाद उसके ऊपर एक हल्का सा धब्बा जैसा पड़ जाता है, जिसको हम कॉर्नियल ओपेसिटी कहते हैं। और वो किस तरह से लगेगा, वो इस तरह से एक सफेद धब्बा हमारी आंख के अंदर दिखाई देगा। जिस तरह से आपको दिखता है ये कॉर्निया, ये बिल्कुल आंख है, और इसके सामने ये जो आपको काला मैंने चीज बताई है आइरिस है, और इसके सामने एक पतली झिल्ली है। उस झिल्ली पर इस तरह का दाग लग जाएगा, और ये दाग होने के कारण दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हम इसको कहते हैं कि कॉर्निया में इन्फेक्शन होने के कारण अगर हमारे पास कॉर्निया में स्कार हो जाता है तो ये कॉर्नियल स्कारिंग कहलाती है, और इन्फेक्शन को हम बोलते हैं केरेटाइटिस, और उसके बाद स्कार बन जाता है तो कॉर्नियल स्कार। और ये जो है, ये जो जिस तरह की ये परेशानी या किसी तरह की जो डिजीज है, इसका बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि हम कॉर्निया को बदल सकते हैं। और इसी को हम कॉर्नियल ग्राफ्टिंग, या जब आई डोनेट करते हैं, तो ये कॉर्निया एक ऐसा स्ट्रक्चर है आंख का, जो पतली झिल्ली है, ये हम एक से दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। तो आई डोनेशन के अंदर कॉर्निया को इस्तेमाल किया जाता है, और इसलिए कहते हैं कि आंख का डोनेशन करना सबको, सब मतलब करना बहुत, इट्स अ काइंड ऑफ
इट शुड बी डन, मतलब हम लोग को प्लेज लेना चाहिए कि हम अपनी कॉर्निया डोनेट करें, और डेथ के बाद कॉर्निया डोनेट की जा सकती है, और ये कॉर्निया किसी के काम आ सकती है जिसको कॉर्नियल स्कारिंग हो या केरेटाइटिस की वजह से उसकी कॉर्निया में कोई दिक्कत हो। तो दैट इज समथिंग अ वेरी बिग डोनेशन विच वी कैन गिव एंड टू समबडी, सो दैट द आई, उसका आई की फंक्शनिंग वापस नॉर्मल हो सके। एक मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि फोटो केरेटाइटिस, जिसको हम स्नो ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है कि जब हम स्नो के अंदर जाते हैं या जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरी हो, तो वहां पर क्या होता है कि जो सन की जो रेस होती हैं वो स्नो से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख के ऊपर पड़ती हैं। उसके कारण हमारे आंख की कुछ, जो कॉर्निया की कुछ लाइनिंग्स होती हैं, जो कॉर्निया में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो वो लेयर के अंदर क्या होता है कि वो उनके ऊपर खराब इफेक्ट पड़ता है, और इट इज कॉल्ड एज लाइक देयर कुड बी कॉर्नियल बर्निंग। तो ये होने के कारण कुछ लेयर्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और जैसे हमारे हाथ के ऊपर गरम गरम पानी गिर जाए, तो जैसे हाथ के ऊपर पानी गिरने से थोड़ा सा जलन हो जाती है, जल जाता है वो एरिया, उसी तरह कॉर्निया की भी कुछ लेयर्स इसके कारण जल जाती हैं, खराब हो जाती हैं, और ये बहुत पेनफुल होता है। और ये थोड़े पर ये बहुत ही टेम्पररी होता है, और थोड़े दिन में ये ठीक भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सन ग्लासेस, मतलब काले चश्मे जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रोटेक्ट कर सके, वो हमें पहन के स्नो के अंदर जाना चाहिए, जिससे हम अपनी कॉर्निया को डैमेज से बचा सकें। इसी तरह आप देखेंगे कि कॉर्निया में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे जैसे जिसमें ये होता है कि कुछ इसकी जिसकी कुछ लेयर्स में वीकनेस हो सकती है, उस वीकनेस के कारण ये थोड़ा सा इसके अंदर थिनिंग हो जाती है। थिनिंग होने के कारण ये जो कॉर्निया, जो काले के ऊपर एक हल्का सी परत है, इसी को हम कॉर्निया बोलते हैं। तो ये जो परत है ये थोड़ी सी बाहर की तरफ और उभर आती है, और इसको बाहर की तरफ उभरने की वजह से इस कंडीशन को हम केरेटोकोनस बोलते हैं। इसके अंदर भी यही होगा कि इमेज ठीक नहीं बनेगी, और ये थोड़ा सा फ्लैटेंड होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, पर ये इसके साथ थोड़ा बाहर की तरफ उभार आ जाएगा, और इसी कारण हमको कहते हैं कि ये कंडीशन में कॉर्निया बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकल आती है, और उसके कारण देखने में बहुत डिफिकल्टी आती है। एक और कंडीशन है जो हम विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से कॉर्निया में देखते हैं, और वो कॉर्निया में क्या होता है कि विटामिन ए हमारे लिए दो तरह से लाभदायक है। एक तो ये रेटाइना में जो हमारे पास रॉड्स होती हैं, कोन्स होती हैं, उनको हेल्प करता है उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। दूसरा, एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारी बाहरी परत है, स्किन है, कॉर्निया है, कंजंक्टिवा है, उसकी बाहरी परत को भी अच्छा, मतलब उसको इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखता है, उसको मेंटेनेंस में काम करता है। इट इज लाइक अ लुब्रिकेंट। तो जो भी चीज चल रही है वो अच्छी चले, उसको उसको मेंटेन करता है। तो देखा जाएगा कि इसका डेफिशिएंसी होने के कारण कॉर्निया के अंदर जो उसके सेल्स होते हैं वो उसके अंदर एक चिकनापन जिसे कहते हैं हम, लस्टर जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसकी वजह से ड्राई होने लगते हैं, और उसकी वजह से कॉर्निया डैमेज हो सकता है। तो विटामिन ए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केसेस ऑफ कॉर्नियल मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्निया, इंटीग्रिटी ऑफ द कॉर्निया और इपिथेलियल टिश्यूज, मतलब कॉर्निया की लेयर को मेंटेन बहुत अच्छा करके रखता है। धीरे धीरे कभी कभी कोई कंडीशंस होती हैं जिसमें आंख में मैंने जैसे आपको बताया लेक्राइमल ग्लैंड, जो हमारी आंसू बनाने की जो हमारी ग्रंथि है, अगर कई बार ऐसा होता है कि वो अगर उसमें कुछ डिफेक्ट्स हो जाएं तो उसकी वजह से वो उसमें हमारे आंसू कम बनते हैं, और ऐसा ये हो सकता है विद एज। तो उसकी वजह से आंख में ड्राइनेस रहेगी, या लिड अच्छे से, आंख का लिड जिसे हम पलक बोलते हैं, अगर नहीं क्लोज होगा तो उसकी वजह से ड्राइनेस रहेगी। या कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, जैसे हमारी बॉडी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक तरह की आर्थराइटिस होती है जिसमें हाथ पैर थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, तो वैसे उनमें भी क्या होता है कि हमारे को लैक्राइमल ग्लैंड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसकी वजह से आंख कॉर्निया डैमेज हो सकती है।
एक ये डिजीज बहुत कॉमन होती है जिसमें ड्रग का इंटरैक्शन हो जाता है, जिसमें कोई भी दवाई जो है वो हमारे साथ हमारे को गलत तरह से रिएक्ट कर जाए किसी के अंदर, तो सारे स्किन के ऊपर छाले या फफोले जैसे पड़ जाते हैं। और ये जो छाले जैसे पड़ जाते हैं, इनको हम ब्लिस्टर्स जैसे हम जाते हैं, बिल्कुल जैसे पानी गर्म पानी की वजह से या जलने की वजह से होते हैं, उसी तरह से रैश और ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। और इनके कारण ये होता है कि धीरे धीरे ये कॉर्निया के अंदर ये छाले बनने के कारण हमारे को डिफिकल्टी हो जाती है देखने में, और ये इसकी वजह से धीरे धीरे स्कार्स बन जाते हैं और फिर पूरी एक आंख के ऊपर एक झिल्ली जैसी दिखाई देने लगती है। इस डिजीज को स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कहा जाता है, और कई लोगों के अंदर आप पाएंगे कि आंख के ऊपर एक झिल्ली जैसी दिखाई देती है, और पूछने पे पता चलता है कि हाँ मैंने कोई दवाई खाई थी उसके बाद ऐसा हो गया। तो सल्फर ड्रग्स के साथ भी बहुत होती हैं। कई लोगों को अमोक्सिसिलिन की किस तरह की कई मेडिसिन हैं जिनकी वजह से ये डिजीज हो सकती है, और ये कह नहीं सकते कि क्यों होती है, पर कोई 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 व्यक्ति इसके साथ अजीब तरह से रिएक्ट करता है और उसकी वजह से ये छाले पड़ जाते हैं, और इन ब्लिस्टर फॉर्मेशन की वजह से उसकी आंख के ऊपर स्कारिंग हो जाएगी। तो ये सारी डिजीजेस जो हमने डिजीज अभी आपके साथ डिस्कस करी, ये सारी कॉर्निया को लेके है, जो एक पतली सी झिल्ली है हमारे आंख के सामने। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा लेंस होता है। जैसे हमने आई के स्ट्रक्चर में हमने अभी पहले देखा था, तो वो जो लेंस जो है वो बिल्कुल एक पारदर्शी स्ट्रक्चर है, और कॉर्निया के अंदर जाके आंख के अंदर जाके ये पाया जाता है। और ये एक प्रोटीन से बना होता है जिनको हम क्रिस्टलीन्स का नाम देते हैं। क्रिस्टलीन से जैसे आपको नाम से समझ में आएगा, ये क्रिस्टल जैसे है, मतलब बिल्कुल जैसे हमारा बिल्कुल जैसे चीनी के दाने होते हैं छोटे छोटे, जो बिल्कुल क्लियर होते हैं, उस तरह से इनको हम देखते हैं। और जिस तरह के डायमंड जैसे आपने देखा होगा, उसमें एकदम पारदर्शी और चमकदार होता है, उस तरह से ये क्रिस्टलीन्स होते हैं जो हमारे लेंस को बनाते हैं। लेंस के अंदर तीन तरह के क्रिस्टलीन्स पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और ये क्रिस्टलीन्स इतने अच्छे से पैक्ड होते हैं लेंस के फाइबर्स के बीच में, कि जिससे ये लेंस को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी देते हैं, और लेंस एकदम पारदर्शी स्ट्रक्चर है। और इसका दोनों तरफ से ये उभार लेके होता है, जिस तरह से हम नमस्ते करते हैं और हम थोड़ा सा अपने हाथ को अगर उभार लें, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, जैसे नमस्ते के पोज में इस तरह से ये दिखाई देता है। और ये ही स्ट्रक्चर हमारी आंख के अंदर पाया जाता है, जिसको हम लेंस कहते हैं। अगर आप लेंस को देखेंगे तो आप ये दिखाई देगा कि ये इस तरह से पारदर्शी और दोनों तरफ से उभार लेके इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। ये हमारी कॉर्निया है, कॉर्निया के बिल्कुल भीतर अंदर ये लेंस पाया जाता है। अगर लेंस के अंदर पारदर्शिता उसकी कम हो जाए, उसके अंदर हल्के हल्के धब्बे आ जाए, तो वो धब्बे आने से क्या हो जाएगा कि लेंस हमारा पारदर्शी ना रह के उसमें धब्बे दिखाई देने लगेंगे, जिसको हम कहते हैं ओपेसिटीज। तो इन ओपेसिटीज के कारण ये आंख के अंदर ये धब्बा जैसा आपको दिख रहा है, या सफेद सा अंदर दिखाई दे रहा है, तो वो जो कॉर्निया का जो धब्बा होगा वो भारी की तरफ बाहर दिखाई देगा। जो कैटरैक्ट का धब्बा होगा वो अंदर की तरफ आंख के अंदर झांकने पे दिखाई देगा। तो ये दोनों हमको दिख सकते हैं और हम देख भी सकते हैं इनको। अगर ये काफी बड़े हो जाते हैं तो लेंस के अंदर जो पाए हुए जो धब्बे हैं वो हमको दिखाई भी देने लगते हैं। अब ये धब्बे क्यों बन जाते हैं या ये ओपेसिटी क्यों हो जाती है? ये होता इसलिए है कि ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये अपने आप में इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद ये डिस्ट्रॉय होके, जिस तरह से आप देखते हैं कि हम कोई भी जैसे मैं एग का एग्जांपल लूं, तो अगर अंडे को आप देखेंगे कि जो उसका सफेद पोर्शन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पर जैसे ही हम उसको तवे पे डालते हैं या उसको गर्म करते हैं तो वो व्हाइट जैसे होके इकट्ठा जैसे हो जाता है। उसी तरह क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लेंस है वो प्रोटीन से बना होता है, तो वो ये प्रोटीन अगर कोई भी हमारी आंख के अंदर हमारी फिजियोलॉजी में, मतलब हमारे आंख की एक्टिविटी में कोई भी गड़बड़ होती है, तो ये प्रोटीन्स इकट्ठे हो जाते हैं, और इनको इकट्ठे होने के कारण ये कैटरैक्ट कहला बन जाता है। और भी कई चीजें हैं जैसे डायबिटीज है, स्मोकिंग है, इसके साथ भी कैटरैक्ट प्रेसिपिटेट हो सकता है। कैटरैक्ट होने से आपको लगेगा कि जो आंख में देखने की जो क्षमता है वो
हल्की हल्की सी उसको धुंधला सा दिखाई देगा। जिस तरह से अगर हम अपनी आंख के सामने एक पॉलिथीन पेपर रख लें और देखने की कोशिश करें, तो उस तरह का हमारा विजन हो जाएगा। जो रंग होंगे वो हल्के हल्के फेडेड जैसे दिखाई देंगे, जैसे ब्राइटनेस खत्म हो जाएगी रंगों की। रात में देखने की क्षमता कम हो जाएगी। उसी तरह से कोई भी ज्यादा रोशनी वाली कोई चीज होगी तो वो हमको बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई देगी। और कोई भी रोशनी होगी उसके चारों तरफ गोले जैसे दिखाई देंगे। ये मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से दिखाई देंगे। अ, यहाँ आपको दिख रहा है ये जो व्यक्ति है, इनके हाथ में एक लालटेन है, पर ये धुंधले से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत चमकदार दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट के जैसी लाइट्स हैं, उसके चारों तरफ एक आपको गोले जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम हैलोज बोलते हैं। तो इस तरह से या फिर आपका विजन में आपको दो दो कुछ दिखाई दे रहा है, जिससे साफ नहीं दिख रहा है, जिसमें दो उंगलियां ना दिख के आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कैटरैक्ट के साथ एसोसिएटेड होती हैं। इसके साथ ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट एक और कंडीशन है, जिसके अंदर कोई चोट लगने के कारण कैटरैक्ट हो सकता है। और ये आपने देखा कि इसमें छोटी सी टेबल बनी हुई है, जिसमें स्टिक्स हैं, कोई रॉड है आयरन की, जिसमें नेल्स हैं। तो ये सारी चीजों से भी जो जोर से आंख में लगा, जोर से इन चीज से लगे, तो इसकी वजह से ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, जिसे मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रोटीन्स के जो हैं और जो फाइबर्स के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो वो इस तरह से एक दूसरे के अंदर इंटरैक्ट करते हैं कि जिससे वो इकट्ठे हो जाते हैं और हमको ओपेसिटी डेवलप हो जाती है। कई कंडीशंस हैं जिसमें कैटरैक्ट पैदाइशी होता है, जिसको हम कंजेनाइटल कहते हैं, जिसमें एक कंडीशन है डाउन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम। और ये कोई इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि रूबेला, अगर माँ को कोई इन्फेक्शन हो जाए जब बच्चा पेट में होता है तो उसको रूबेला। चिकन पॉक्स एक और कंडीशन है, जब माँ बच्चा पेट में हो और इस तरह का इन्फेक्शन हो जाए, तो बच्चा पैदाइशी कंजेनाइटल कैटरैक्ट के साथ, मतलब उसके आंख के अंदर कंजेनाइटल कैटरैक्ट होगा। कुछ दवाइयां हैं या रेडिएशन हैं, उनके कारण भी कंजेनाइटल कैटरैक्ट हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कैटरैक्ट पैदाइशी होगा। तो ये कैटरैक्ट, दिस इज मतलब लेंस के अंदर सबसे ज्यादा जो दिखाई देता है वो कैटरैक्ट ही डिजीज है, और वो कंजेनाइटल हो सकता है डिजीज, कोई ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, और या वो एजिंग के साथ हो सकता है, जैसा हमने डिस्कस करा। विद एज ग्रेजुअली कैटरैक्ट डेवलप हो जाता है। आफ्टर एज ऑफ 40 वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और कैटरैक्ट डेवलप होने लगता है। उसके बाद हमें आंख का एक बार अपना ऑप्थेल्मोलॉजी से जो आंख के डॉक्टर होते हैं उनको दिखाना बहुत जरूरी है। अब लेंस के बाद हम बात करेंगे रेटाइना की, जो हमें जिसे आंख का पर्दा के नाम से भी जानते हैं, और इसके ऊपर ही हम कहते हैं कि इमेज बनती है। तो इसके अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम रॉड्स एंड कोन्स के नाम से जानते हैं। और इन रॉड्स एंड कोन्स की एक्टिविटी से ही हमको जो भी कुछ दिखाई देता है वो इन्हीं की वजह से दिखाई देता है। रॉड्स जो होती हैं करीबन 120 मिलियन है, और ये हमारे साइड में आंख के मतलब रेटाइना के साइड में होती हैं। और ये हमको हल्की रोशनी में देखने में सहायता करती हैं। साथ में साइड में जो भी पेरिफेरल व्यू है, मतलब हमें साइड में, जैसे हम सामने देखते हैं फिर भी हमको साइड में क्या हो रहा है ये सब दिख जाता है, तो वो उसी के लिए वो हमको हेल्प करती हैं। कोन्स जो होती हैं वो 6 to 7 मिलियंस हैं, और ये हमारे को ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करती हैं, तेज रोशनी में। साथ में ये हमको रंग भी दिखाती हैं। कोन्स ज्यादा करके सेंट्रल पार्ट ऑफ द आई में है, और ये इसको हम मैक्युला बोलते हैं। अगर हम देखें तो रेटाइना के अंदर क्या क्या डिजीज हो सकती हैं सडनली। रेटाइना के अंदर से रेटाइना हमारी उसमें टीयर हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हल्का सा अगर हम किसी चीज पे बहुत जोर लगाएं तो जैसे कपड़ा फट जाता है, उसी तरह अगर बहुत रेटाइना के ऊपर कुछ तरह का जोर पड़े तो वो रेटाइना का टीयर हो सकता है, मीनिंग देयर बाय कि रेटाइना की जो लेयर है वो टूट सकती है। ये हो सकता है कि ये कब हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि एज रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर क्या होता है कि आंख के अंदर रेटाइना बहुत जोर से एक लिक्विड होता है उसके साथ जुड़ी होती है, पर अगर वो उसमें खिंचाव आ जाए, रेटाइना में खिंचाव आ जाए, तो उसकी वजह से ये रेटाइना के अंदर टीयर हो सकता है। रेटाइना टीयर होने के कारण क्या होगा कि हमें आंख के अंदर छोटे छोटे दान, लोगों को ऐसा दिखता है कि कुछ चीज उड़ रही है,
जिनको हम कहते हैं फ्लोटर्स, मीनिंग देयर बाय कि किस तरह कोई चीज ऐसे तैरती हुई सी दिखाई देती है। विजन हदम हल्का हो जाएगा और इसमें कोई दर्द नहीं होता, इसलिए हमें पता नहीं चलेगा कि किसी को रेटाइनल टीयर हो जाए। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि देयर कुड बी अ रेटाइनल टीयर एंड नोबडी कम्स टू नो अबाउट इट, व्हिच आर नोन एज साइलेंट। तो रेटाइनल टीयर होने के बाद क्योंकि वो पेनलेस होते हैं और देयर कुड बी अ रेटाइनल टीयर एंड इट कुड बी साइलेंट, नोबडी कम्स टू नो बिकॉज वो पता ही नहीं चलते हैं। रेटाइनल टीयर्स पर कब 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 प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो विट्रियस आंख के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड अगर उसको खींचे रेटाइना को तो रेटाइना का टीयर हो सकता है, या आंख में बहुत जोर की इंजरी हो, हमारे को हेड इंजरी हो और उसमें हमारा हेड मतलब बहुत जोर से चोट लगे उसमें, या आंख में आप कोई सर्जरी कर रहे हो और गलती से रेटाइना की में कोई खिंचाव पड़ने के कारण रेटाइनल इंजरी हो सकती है, रेटाइनल टेयर हो सकता है। इसी तरह रेटाइना के अंदर डिटैचमेंट भी हो सकता है, पूरी रेटाइना उखड़ भी सकती है। मतलब रेटाइना एक लेयर है, वो आंख के अंदर होते मतलब कोई हमारी आंख से अलग भी हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो डिटैच होती है तो ये इसलिए होता है कि रेटाइना जुड़ी होती है बहुत अच्छी तरह से, हमारे तीन कोट्स होते हैं, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटाइना। तो रेटाइना और कोरोइड जुड़े हुए होते हैं, पर ऐसा हो सकती है, ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जहां पर लिक्विड इकट्ठा हो जाए, उसकी वजह से रेटाइना के अंदर लिक्विड या रेटाइना की लेयर के अंदर अगर लिक्विड इकट्ठा हो जाए तो रेटाइना डिटैच हो सकती है। सबसे कॉमन कॉज है इसका डायबिटीज, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि रेटाइना की लेयर निकल जाती है और हमारा विजन धीरे धीरे खराब हो जा सकता है। डायबिटीज के साथ साथ एक और जो कंडीशन डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं कि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो डायबिटीज जो हमारी आंख के अंदर होती हैं, डायबिटीज के कारण ये ब्लड वेसल्स बहुत ही पतली हो जाती हैं और इनके अंदर से फ्लूइड निकलने लगता है। ये फ्लूइड रेटाइना लेयर के नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है और एक्यूमुलेशन के कारण ये क्या होता है कि इकट्ठा होने के कारण ये रेटाइना को अपनी जगह से हटा देता है। हटाने के कारण इसी को हम रेटाइनल डिटैचमेंट कहते हैं। और ये डायबिटिक रेटाइनोपैथी ये इसलिए होता है क्योंकि अगर बहुत डायबिटीज बहुत लंबे समय से हो और अगर हम अपने ब्लड शुगर्स को अच्छे से कंट्रोल में ना रखें तो ये डायबिटिक रेटाइनोपैथी डेवलप हो सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के जमाने में, जहाँ पे एवरी हाउस होल्ड, हर हाउस होल्ड में एक डायबिटिक पेशेंट है। तो हमको ये ध्यान आकर्षित करना है कि डायबिटीज के कारण क्यों ऐसा होता है कि हमारा विजन खराब हो सकता है। दिस इज बिकॉज वी लूज कंट्रोल of the not good control of sugar and leading to accumulation of liquid in the retina and this causing retinal detachment. एक कंडीशन है जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, मैक्यूलर डिजेनरेशन। मैक्यूलर डिजेनरेशन जैसा कि हमने पता करा कि कोन्स जो होती हैं वो मैक्यूला के अंदर पाई जाती हैं और ये मैक्यूला जो होता है हमें बारीकी का काम करने के लिए बहुत हेल्प करता है, जिसमें जैसे हम बिनना चुगना करते हैं जैसे, या फिर हम नीडल और थ्रेड अगर डालते हैं, तो ये वाली जो सब बारीकी का जितना काम है, हम पढ़ाई करते हैं, छोटा अक्षर पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये सारा जो है एरिया कोन्स में जो हमारा मैक्यूलर एरिया है जो मैंने बताया आपको, उसकी सबसे ज्यादा कोन्स वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, वो हमको हेल्प करते हैं। तो ये हमको विजन में हेल्प करता है। तो इसमें डिजेनरेशन हो जाए मतलब धीरे धीरे, जैसे हमने कहा कि एज के साथ अगर मैक्यूला खराब होती जाए या ये एज के साथ डिजेनरेट कर जाए, तब हम इसको मैक्यूलर डिजेनरेशन की कैटेगरी में डालते हैं। और मैक्यूला के खराब होने से क्या होगा कि हमें दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाएगा, बारीकी का काम हम नहीं कर पाएंगे, आंख के अंदर धब्बे से काले धब्बे दिखाई देंगे। ये ब्लरिंग करेगा, मतलब आंख अपनी ठीक से दिखाई नहीं देगी, आंख के अंदर कहीं पे एक काला धब्बा जैसा दिखाई देगा, सेंट्रल विजन चला जाने से रीडिंग नहीं कर सकते, किसी का फेस हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, हम पास के काम नहीं कर सकते, ड्राइविंग करने में हमें दिक्कत आ सकती है। तो ये सब कुछ मैक्यूलर डिजेनरेशन मीनिंग देयर बाय रेटिना का ही एक पार्ट है जो मैक्यूला है उसके अंदर डिजेनरेशन के कारण हो सकता है। मैक्यूलर डिजेनरेशन देखा गया है कि एज के साथ रिलेटेड है, स्मोकिंग के साथ भी रिलेटेड होता है, एक्सेसिव सन एक्सपोजर में, हाई बीपी के साथ, और ये सारे कारण हैं, या डाइट जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम होते हैं, ये मैक्यूलर डिजेनरेशन
के साथ एसोसिएटेड है, पर अभी भी इसका कॉज पता नहीं है। और मैक्युलर डिजेनरेशन अगर सेट इन हो जाए तो फिर इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए कि ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से हमारा विजन लॉस हो ही जाएगा। रेटाइना के अंदर अगर आपने ये बहुत ही कॉमन ये पिक्चर देखी होगी, जिसमें ये नॉर्मल विजन है, पर यहाँ पर विजन अफेक्टेड है, जिसमें ये लग रहा है कि साइड का विजन चला गया। साइड का विजन कैसे चला जाएगा? जैसा कि हमने बात करा कि अगर रॉड्स के अंदर डिफेक्ट हो जाए तो रॉड्स की डिफेक्ट होने से साइड का विजन चला जाएगा, कोन्स के डिफेक्ट होने से मैक्युला का विजन चला जाएगा, और साइड में डिफेक्ट होने, रॉड्स के डिफेक्ट होने से साइड का विजन चला जाएगा। इसको हम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होगा कि रॉड्स में डिफेक्ट, रॉड्स की खराबी होने के कारण हमको साइड का विजन नहीं दिखाई देगा, और धीरे धीरे करके हमारा विजन सेंट्रल की तरफ लोकेट हो जाएगा, सिर्फ सेंटर का पार्ट दिखाई जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ सेंटर का पार्ट दिखाई देता है, तो इसलिए हम इसको टनल विजन के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह से हम किसी गुफा के अंदर से निकल रहे हो तो हमको सिर्फ सामने ही सामने का दिखाई देता है, इसलिए इसको टनल विजन के नाम से भी जानते हैं। एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं रेटाइना की है, जिसको कहते हैं रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। इसमें प्रीमेच्योर बच्चों में रेटाइना के अंदर रेटाइना ठीक से डेवलप नहीं हो पाती, और उसके कारण बच्चा की विजन ठीक से नहीं बनता। और ये हमें बहुत ध्यान रखना है, और किन बच्चों के अंदर ध्यान रखना है कि वो जो बच्चे जो 2 kg से कम की जिनका वेट हो, या वो बच्चे, इनको 1.6 की भी कैटेगरी में कई लोग 1.6 kg का भी मानते हैं, और जो बच्चा 34 वीक्स से पहले पैदा हुआ। तो ये सारे बच्चों के अंदर हमें स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी रेटाइना बहुत प्रीमेच्योरिटी के कारण रेटाइना ठीक से डेवलप नहीं होती, और उसके कारण ये हमें विजन में प्रॉब्लम होती है इन बच्चों को। इसलिए इनका हर 1 या 2 हफ्ते के अंदर इनका विजन चेक होना होता है बाय एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। मैं यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव एरर्स की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगी। रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या हैं कि ये वो डिजीजेस हैं जिसमें हमको ठीक से हमारा आंख के अंदर फोकस ठीक से नहीं हो पाता, कोई भी चीज जो है हम ठीक से फोकस नहीं कर पाते। तो ये फोकसिंग क्यों नहीं हो सकती? या तो हमारी आंख की लेंथ ठीक नहीं हो, या हमारी कॉर्निया के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये फोकस ना हो, या धीरे धीरे करके लेंस में कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से हमारे को आंख को ठीक से दिखाई नहीं देता। इन्हीं सारी कंडीशंस को रिफ्रैक्टिव एरर्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स में आपने जैसा जानते होंगे कि मायोपिया एक कंडीशन होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि पास की चीजें अच्छी दिखाई देती हैं पर दूर की चीज नहीं दिखाई देती। हाइपरमेट्रोपिया, इसके अंदर दूर की चीज अच्छी दिखाई देती है पर पास की नहीं दिखाई देती। एक कंडीशन होती है एस्टिग्मेटिज्म, इसमें दूर और पास दोनों की ही नहीं दिखाई देती। और एक कंडीशन होती है प्रेस बायोपिया, ये एज के साथ होती है, और ये लेंस की फोकसिंग पावर अगर खराब हो जाती है उसकी वजह से नहीं दिखाई देती। ये सारी डिजीजेस ऐसी हैं जो हम अगर ठीक समय पे पकड़ ली जाए, या हम इसको हम अगर बच्चों का ध्यान हम अगर अपना बच्चों के अंदर अगर हो, या एल्डरली में हो, तो अगर हम इनको जल्दी पकड़ लें तो हम इनको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मायोपिया के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज कर सकते हैं, जो दोनों अंदर की तरफ होते हैं, जिसमें अंदर कर्वेचर अंदर की तरफ होता है, जैसा चम्मच है उस तरह से, तो वो कॉनकेव कहलाता है। और जिसमें बाहर की तरफ उभार होता है, जैसे चम्मच का बाहरी उभार जो है उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। और एस्टिग्मेटिज्म के लिए अलग तरह के बाइफोकल दूसरे 2 तरह के, जिसमें कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों मिला के बनाते हैं, इस तरह के लेंसेज। और प्रेस बायोपिया जो वीकनिंग ऑफ द मसल फाइबर, लेंस की वीकनिंग की वजह से होता है, ये एज से रिलेटेड होता है। तो ये सारे जो एरर्स हैं ये हम अपने लेंसेज के थ्रू ठीक कर सकते हैं, और इनको हम ये इनका एक तरह से हम किसी को भी रिफ्रैक्टिव एरर्स जो हैं इनको हम करेक्ट कर सकते हैं, और ये कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंसेज से हो सकता है। So thank you very much for patiently listening, and I hope I've been able to convey what I wanted to. And I'm very thankful for giving me this opportunity to speak to all of you. Thank you. Done, ma'am. Done. Thank you, ma'am. Yeah.